There's news, there's sense, and there's nuisance. This show is all about 17th century India. भाई, जब न्यूज का मीनिंग ही करंट अफेयर्स से मुगल अफेयर्स हो गया है, तो हम किस खेत की मूली हैं? आज हम आपको मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा तोड़े गए एक एक मंदिर की कहानी बताएंगे। धन्य है सुधीर, आज तक चले गए, तो अब टीआरपी के लिए एक एक मंदिर की कहानी तो बतानी पड़ेगी। इनका पूरा 2022 का न्यूज प्रोग्रामिंग सेट है। और क्या सीखने को मिलेगा हमें? इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि भारत स्पेन से क्या सीख सकता है। ये जरूरी खबर है। जरूरी खबर। स्पेन से इंडिया क्या सीख सकता है? Maybe the healthcare system, which is free for all its citizens. It's supposed to be one of the best in the world. Maybe we could learn that from them. स्पेन से भारत क्या सीख सकता है, ये आपको जरूर जानना चाहिए। हम जरूर जानना चाहते हैं, स्पेन से भारत क्या सीख सकता है? Please tell me, I'm waiting with bated breath. मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत की तरह स्पेन पर भी कई वर्षों तक राज किया और इस दौरान कई ऐतिहासिक चर्चेस को तोड़कर वहां मस्जिदों का निर्माण कर दिया गया। Okay. So from 17th century India, let's go back to 7th century Spain. फिर क्या हुआ? जैसे ही स्पेन आजाद हुआ, उसने इन मस्जिदों को गिराकर फिर वहां पर चर्चेस बना दिए। जैसे ही स्पेन आजाद हुआ, I'll come to that in a bit, but इस सब का पॉइंट क्या है भाई? भारत में ये आज तक मुमकिन नहीं हो पाया। ओहो, पुअर भारत। अगर 14th सेंचुरी में स्पेन में मॉस्क्स तोड़ के चर्चेस बनाए जा सकते हैं, तो 21st सेंचुरी इंडिया में हम क्यों नहीं सारे मस्जिद तोड़ के मंदिर बना नहीं सकते? अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद जब इन मंदिरों के साथ न्याय होना था, तब हमारे देश में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हुई और ऐसे कानून बना दिए गए ताकि ध्वस्त किए गए मंदिरों की कभी भी पुनर्स्थापना हो ही ना सके। आजादी के बाद जब भारत को अपनी सांस्कृतिक पहचान में लौटना था, तब हमारे देश के नेताओं ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ऐतिहासिक गलतियों को कानूनी रूप दे दिया और ऐसा कानून बना दिया ताकि ध्वस्त किए गए हिंदू मंदिरों की कभी ना कभी पुनर्स्थापना की जो कोशिशें हैं, उस पर बार बार पानी फिर जाए। Of all the things in the world, this is what Z News wants us to learn from Spain. In 21st century India, we, the people of India, should obsess about 17th century India and then take lessons from 14th century Spain. इस डीएनए का डीएनए टेस्ट करते करते तो पूरा एपिसोड निकल जाएगा। बट शॉर्ट में, मॉडर्न डे स्पेन एंड पोर्चुगल में एक टाइम पे इस्लामिक रूल था अराउंड द 7th सेंचुरी। फिर अराउंड 14th सेंचुरी के आसपास Christian military forces took over and reconquered Spain and Portugal. इस समय काफ़ी mosques को churches बनाया गया. Remember, you can't really call it destruction in many cases because the entire structure was turned, its use was turned from mosque to a church. Cut to 21st century Spain. उनका पीएम आज एक एथिस्ट है। लोग वहाँ मस्जिद गिरजाघरों को लेके एक दूसरे को मार नहीं रहे हैं और न्यूज़ वाले वहाँ एक्चुअल न्यूज़ दिखा रहे हैं। Presenciado cómo desalojaban a los 400 vecinos de esta localidad. Ahora mismo nos encontramos en el Polideportivo Municipal de Ateca, apenas 10 kilómetros de la localidad de Moros, donde están empezando a reubicar a estos vecinos que han tenido que salir de sus casas con lo puesto, corriendo, han podido coger simplemente algo de ropa, de medicinas y de mascotas. In India, news channels आग पे रिपोर्ट नहीं करते, आग लगाने वाली रिपोर्ट करते हैं। History is complex with many perspectives and ways of looking at the very same event. No one can deny that temples were destroyed in India during the Islamic invasion. How many temples? We may never know. But it's a historical fact. But that is not the only reality of present day or indeed historical Hindu-Muslim relationships in India. For some people, Hindu-Muslim interactions of the past was all love and peace and joy and syncretic. La 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 type of an affair. For others, it was maar kaat, khoon kharaba, destruction hi destruction. The truth, like in most cases, is somewhere in the middle. It's good to know your history, engage with it, and make up your mind about it. And I suggest you do it by reading actual books. Because the point of such discussions is not to inform you, is to use past pain points in history to create more division among communities in the present. By the way, Mr. DNA, reconquest के बाद inquisitions भी आए थे. The Spanish-Portuguese Inquisitions were one of the most shameful, brutal aspects of history that even reached Goa, where scores of Hindus and Muslims were persecuted. Do you also want us to learn from that?
Where should our learning start and where should it stop? Mughal affairs is actually just another way for TV news to carry on its Hindu-Muslim propaganda. In this race to the bottom, एक न्यूज चैनल ऐसा है जिसका नफरत के लिए कमिटमेंट इज बिगर देन सनी देओल्स कमिटमेंट टू करिश्मा कपूर इन जीत. धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा. Quite creepy. If Aman ki No Asha and Gullu were asked to do real news on News 18 minus any Hindu-Muslim tadka, this is what their reaction would be like. लाशें बिछा दूंगा, लाशें. In fact, on News 18, Aman and Amish are in a sort of a love triangle with hate news, trying to outdo each other. रोज रात को इनमें कंपटीशन छिड़ता है कि कौन कितना विश, कितनी मात्रा में हमारी एयर वेव्स में इंजेक्ट कर सकता है. इसका फैसला आई थिंक इनके मालिक ही कर सकते हैं. अंबानी जी ऑन द वॉल, हु इज द बिगेस्ट विश पुरुष ऑफ देम ऑल. 2023 से डायरेक्ट जिहाद, 2047 में मुस्लिम राष्ट्र, PFI का प्लान, बारूद पर हिंदुस्तान. ISI एजेंट आया, किसने बुलाया, किसने, किसकी नस्ल बर्बाद करना चाहते हैं ओवैसी. मजहब सिखाता है आपस में बैर रखना, जहरीली जुबान बहाना, एजेंडा है चलाना. विदेशी चंदा, कानपुर में दंगा, मजहबी चाल, दंगाइयों को ढाल. JCB is equals to Jihad Control Board. बुलडोजर का एक्शन, मजहबी कनेक्शन. Clearly, News 18 wasn't invited to this meeting with the INB minister. The best bit in all of this is the question mark. नुपुर बहाना है, हिंदुओं को डराना है, question mark. गजवा गैंग तैयार, भारत पे जिहाद प्रहार, question mark. हिंदू आबादी घटेगी, अराजकता बढ़ेगी, question mark. आबादी ज्यादा, किसका फायदा, क्वेश्चन मार्क. एक थे जुदाई के परेश रावल और अब एक हैं न्यूज 18 के अमीश एंड अमन. घर में बच्चे हैं? नहीं है. घर में टीवी है? हाँ है. चलता है? जी टीवी है? स्टार कनेक्शन है? हाँ है. केबल है? कितना पिक्चर दिखाते हैं? 2 पिक्चर बताते हैं. एटलीस्ट हसमुख लाल के सवाल क्यूट थे. इन दोनों नफरत लालों की तरह भयावह नहीं थे. Do you get my point? Now, the use of the question mark on TV news is probably the oldest trick in the playbook of these nuisance makers. Not this nuisance, yaar. This nuisance. The oldest trick in the playbook of hate news is the misuse of the question mark. If there's one thing as abused as your trust as a news consumer, it is the poor bichara question mark. अगर ग्रामेटिकली देखा जाए तो क्वेश्चन मार्क इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस विच इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन मार्क marks the end of a question. On TV news, the question mark marks the end of facts. मतलब अगर आपके पास सच के कोई फैक्ट्स या तथ्य नहीं है तो बस आप कुछ भी पेल दो, बस आगे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा देना. जैसे कि 2047 में मुस्लिम राष्ट्र, क्वेश्चन मार्क. Allow me to introduce you to the concept of Betteridge's law of headline. This law states that any headline that ends in a question mark can be answered by the word no. मतलब अगर न्यूज़ में हेडलाइन में क्वेश्चन मार्क दिख रहा है तो समझ लो कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर नो है. 2047 में मुस्लिम राष्ट्र. No God! 2047 में इंडिया मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा. इसका ना कोई एक्चुअल प्रूफ है, ना कोई फैक्ट है, ना ही कोई लॉजिक है, लेकिन क्योंकि आपको डिबेट करनी है तो बस आप बोल दो, बाकी सब क्वेश्चन मार्क संभाल लेगा. The question mark here is just meant to troll the viewers. As the writer and commentator Roger Simon wrote, in journalism, a question mark in a headline justifies virtually anything, no matter how unlikely. क्योंकि क्वेश्चन मार्क्स है जहां फैक्ट की जरूरत नहीं है, वहां टीआरपी की लाइफलाइन. चलो थोड़ा बेटर समझने के लिए एक न्यूट्रल एग्जाम्पल लेते हैं. हम हिंदू मुस्लिम से हट के एलियंस पे आ जाते हैं. सीरियसली. और बात करते हैं हमारे ब्रह्मांड में मौजूद उस दूसरी दुनिया की जिसकी तलाश दुनिया भर के साइंटिस्ट शिद्दत से कर रहे हैं. बात एलियंस की कर रहे हैं हम. क्या है एलियंस को संदेश भेजने का वो मिशन जो अब अपने अंतिम पड़ाव पर है. राष्ट्रमेव जयते में बात दूसरी दुनिया के रहस्य यानी एलियन की करते हैं. राष्ट्रमेव जयते में बात करते हैं एलियन की. वैज्ञानिकों ने एक ऐसे रेडियो सिग्नल को पकड़ा है जिसके बाद दावा किया जा रहा है कि इंसान को भेजा गया एलियंस का सिग्नल हो सकता है.
Now, you're about to see the best ever use or misuse of the question mark on TV news. क्या एलियन किसी का अपहरण कर सकता है? क्या एलियन डॉक्टर बनकर आम इंसान की सर्जरी कर सकता है? क्या एलियन हेलमेट पहनाकर दिमाग में रहस्य डाउनलोड कर सकता है? क्या एलियन किसी गर्भवती महिला की डिलीवरी करवा सकता है? क्या न्यूज नेशन के एडिटर्स का दिमाग एलियन ले गया? क्या न्यूज नेशन का टीआरपी का लालच उन्हें पागल बना रहा है? क्या न्यूज नेशन के एडिटर्स भांग खा के न्यूज देते हैं? कुछ भी बोल दो, कोई भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पेल दो, बस आगे क्वेश्चन मार्क ठोक दो। टीवी एंकर्स क्वेश्चन मार्क के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाते हैं, फिर बोला जाता है कि भाई हम तो सिर्फ सवाल पूछ रहे थे। Wrapped in the garb of questions, टीवी न्यूज़ आपको कुछ भी फीड कर देती है, चाहे एलियंस की मनोहर कहानी हो या नफरत हो या प्रोपेगेंडा हो या डिसइंफॉर्मेशन हो, और फिर किसी चीज़ की कोई भी जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत नहीं है। विन विन फॉर देम, लूज लूज फॉर यू। Obviously, News 18 is not the only channel playing this trick. Every channel is complicit in this game in varying degrees. Some questions are communally polarizing and full of hate, while others are smear campaigns against individuals. Why can't Muslims allow Hindus to pray? Question mark. हामिद का ISI कनेक्शन, Question mark. ग्रेटा के प्रोपेगेंडा को कांग्रेस की दिशा, Question mark. Hijab jihad's hidden hand Al-Qaeda. Question mark. उमर खालिद देश के कानून से ऊपर है, Question mark. 48 घंटे बाद न्यूक्लियर वॉर, Question mark. हिंदुत्व की झांकी, 40,000 मंदिर बाकी. Question mark. पैसे लेकर पत्थरबाजी करते हैं मुसलमान, Question mark. सुशांत पर रिया का काला जादू। Oops, इसमें तो क्वेश्चन मार्क भी नहीं डाला। अब चाहे न्यूज़ रेगुलेटर्स न्यूज़ 18 को कितना भी पुल अप कर ले, सुप्रीम कोर्ट टीवी न्यूज़ को कितना भी कॉल आउट कर ले, द क्वेश्चन मार्क इज द की टू गेट अवे विद फैक्ट्स एंड नॉट फैक्ट्स काइंड ऑफ न्यूज़ प्रोग्रामिंग। बट सबसे बड़ा सवाल, व्हाई शुड दे हैव ऑल द फन? करारे चने स्प्रेड्स फेक न्यूज़, फैक्ट्स पे अंजना का काला जादू, नविका द व्हाट्सएप आंटी, अंबानी का चंदा अमन कराता है दंगा, गुल्लू का निकनेम एक अनपार्लियामेंट्री वर्ड है, पैसे लेके दलाली करता है सुशांत। Till when will viewers watch this crap? That's a real question that we're asking you. Till when will you be okay watching debates with mindless questions instead of real facts? TV debates देखना छोड़ दो, न्यूज लॉन्ड्री का NL चर्चा और NL हफ्ता सुनना शुरू कर दो। Our 2 weekly Hindi and English podcasts where we don't assault your senses with graphics and visuals and big mindless questions. These podcasts discuss the news of the week, calm discussions where we agree, disagree, but without shouting at each other. NL Hafta is only for subscribers, so become a News Laundry subscriber and tune in every Saturday. चर्चा फ्री है, लेकिन भाई पैसे पेड़ में नहीं उगते. News Laundry is completely ad-free. Our main revenue model is subscriptions. So if you want us to keep doing even our free shows like NL Charcha, Tippani and Nuisance, you need to subscribe to News Laundry. क्योंकि ये शोज आपके लिए तो फ्री हैं, लेकिन हमारे लिए फ्री नहीं है. लाइट्स, कैमरा, साउंड्स, शो बनाने के लिए सारा तामझाम लगता है. There's a production cost. So if you like our show, if you like what we do, please subscribe to newslaundry.com. Just ₹300 a month. Super chat मत भेजना यार, बस सब्सक्राइब कर दो. That's all the nuisance we have for you this week. We'll be back next week. Until then, stay mad. That's the only way. Thank you so much guys for watching this episode. If you liked it, please like it. Please leave your comments in the comments section. Keep it civil. And please don't forget to subscribe to newslaundry.com.